हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? समीक्षा रूपाली। Yes, sir. Good. हाँ, बोलो। कौन बोल रहा था? बोलो। आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको कैसी लगी? आप जब क्वेश्चंस को मतलब आर्टिकल्स को देख रहे थे तो क्या आप डिसाइफर कर पा रहे थे? वर यू एबल टू डिसाइफर दैट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ सिलेबस और विच टॉपिक you can quote the example of the current so that you can enrich your answer? Were you able to analyze? The first article that is shared by Rupali. So in that, it is mentioned that nearly 2,300 babies adopted in 9 months. So we have a chapter in paper 1, that is system of kinship and family, right? इसको हम उससे relate कर सकते हैं ज़्यादा. We can relate this topic to the types and forms of family and contemporary trends. If there is a question and it has already appeared in the previous years, that what are your views on the changing forms of family, then we can quote it there as an example or an illustration that the families which adopt the child are increasing in number. So our answer could be in a better position to attract more marks. That way we can quote it. How Rupali related it to the population dynamics? Can you tell us, Rupali? Please tell us. What, sir? Yes, VK. Any doubts? I was asking Rupali that she has shared an article Yes, in sir. which it Yes, is sir. quoted that. जो हाँ, बताओ। पॉपुलेशन डायनामिक्स में इमर्जिंग इश्यूज जो है मतलब चाइल्ड लेबर से हम रिलेटेड कर सकते हैं क्योंकि चाइल्ड जो ये अडॉप्शन के केस में वो अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चे को लेकिन फिर वो जब एडजस्ट नहीं कर पाते तो वो फिर से बच्चों को छोड़ देते हैं और बच्चों को उस टाइम मतलब वो चाइल्ड लेबर में फोर्स हो जाते हैं चाइल्ड लेबर बनने के लिए ना यहाँ का रहते हैं ना वहाँ का रहते हैं. Right. You can quote this example also, but try to quote it in a positive manner. That would be more यस effective. सर. If you think about it in a positive manner, यस your सर, इन example पॉजिटिव मैनर is इंडिया में ऐसे बहुत सारे कपल्स है और फैमिलीज है जिन्हें बच्चों से बहुत लगाव है लेकिन वो कोई हेल्थ इश्यूज के वजह से उनका बच्चा नहीं हो पाता तो अडॉप्शन की वजह से वो फैमिली को आगे भी बढ़ा सकते हैं और वो इलिटरेट वो बच्चों को वो पढ़ा करके वो एक पोजीशन में खड़ा कर सकते हैं जिससे कि वो बच्चे और बच्चे को अडॉप्शन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं. right. So we can classify this example in the chapter 9 also. And if we talk about mobility, stratification and mobility, how we are providing mobility chances to those who are orphan. If there's a question that come about that in COVID many children were orphaned, so in that case also we can quote this example. So it is a good example, and this is how we have to take articles from the newspaper itself and make our answer different, because the theory part that we are writing is almost similar. We all have the same sources, all Nitin Sangwan or the Tushranshu sir notes or the same books of IGNOU, and these are the static part. But these examples can transform our answers to something different, right? Then Hello, sir. Samiksha has shared an article in which it is about stratification, discrimination, prejudices, gender issues are all there. So from this we have a special term that we can see that how the high class or the high caste is imposing
or taking away the cultures of the other caste. Like it started as a culture from the lower rungs of the society, and how higher caste have hijacked it for its own personal preferences and the uses. So we can quote this. So you tell me where I can quote this. Anybody can tell me from which chapter or which topic we can quote this in our answers. I'm talking about the article that Samiksha shared about caste, Devdasi culture, high caste and low caste. Can anybody tell me where we can use this? सर इन पेपर 2 challenges of social transformation वहां हम ये ऐड कर सकते हैं. राइट. किस तरीके से ऐड करेंगे आप? जैसे कि सर हम अभी देख रहे हैं, मतलब ये जो देवदासी सिस्टम है, वो जो हाई लेवल लो लेवल है, वो सब अभी कास्ट से लेके क्लास में कन्वर्ट हो चुका है. वो पहले था ट्रेडिशनल में, अभी बेस्ड ऑन नॉलेज, बेस्ड ऑन एबिलिटी, ये सारी चीज चेंज हो चुका है. अभी कोई किसी को हाई कास्ट लो कास्ट के वजह से वो दोनों कॉलिग भी हो सकते हैं. ऐसा कोई डिफरेंस अभी ज्यादा महसूस नहीं हो रहा है जो कि पहले हुआ करता था. और देवदासी सिस्टम जैसे कि वो अभी खत्म ही लगभग हो चुका है, और फेमिनिस्ट अप्रोच अभी थोड़ा आगे बढ़ रहा है. ये सब थोड़ा चेंजेस लग रहा है सोसाइटी में. राइट. एंड मोर थिंग टू ऐड ऑन कि एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, उसमें सोशल मीडिया, जो सेकंड पैराग्राफ में इस आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सोसाइटीज और सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है दोनों हाई कास्ट और लो कास्ट के बारे में. तो वो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं एज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज में, कि सोशल मीडिया को यूज करके हम अपने कल्चर को स्प्रेड करना चाहते हैं या फिर किसी और के कल्चर को रोकना चाहते हैं. साथ में वी कैन यूज मार्क्स ऑल्सो दिस. Taking the art as a product of the producer means the class or the caste that produces the art is alienated from the product itself. तो वहाँ पे हम इसको एक अच्छा एग्जाम्पल मार्क्स में भी यूज कर सकते हैं जब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात हो रही है. राइट. देन आशुतोष ने एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल शेयर किया है जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी की बात हो रही है. कि एक तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑर्थोडॉक्सी जो है इट इज स्टिल देयर. हाउ इन द एरा ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन वेयर रेनेसांस एंड एनलाइटनमेंट हैज डेवलप्ड आवर थॉट्स, देयर आर कंट्रीज व्हिच आर स्टिल ऑर्थोडॉक्स एंड बैकवर्ड्स इन इट्स थिंकिंग. यहाँ पे हम कन्फॉर्मिस्ट और डिवियंस वाला जो किसका कंसेप्ट है, कन्फॉर्मिस्ट और डिवियंस किस थिंकर का कंसेप्ट है? कैन एनीबॉडी टेल? आरके मार्टिन. ओके, वेरी गुड. तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से कन्फर्मिस्ट और डेवियंस कैन को एग्जिस्ट इन द सेम कल्चर. और अभी भी ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे इस होमोसेक्सुअलिटी को डेवियंट माना जाता है. इवन इन आर कंट्री ऑल्सो, जो ये कहीं मिडल में आता है. अभी इसको अलाउ भी नहीं किया है पूरी तरीके से, लेकिन कोई सजा का वो भी नहीं है इसमें. तो यहाँ पे इन्होंने अच्छा शेयर किया हुआ है कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल क्लैश आपस में क्लैश करते हैं. फिर डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, ये किसने शेयर किया? नवनीत ने शेयर किया है. इसमें हमें इम्पोर्टेंट ये मिल सकता है कि किस तरीके से जो एथनिसिटी है, यहाँ पे भी हम स्ट्रेटिफिकेशन और मोबिलिटी वाला सिस्टम देख सकते हैं. तो नवनीत आप बताइए, आप किस तरीके से इसको आंसर्स में यूज कर सकते हैं जो आपने आर्टिकल भेजा है. हेलो सर. हाँ विकी, प्लीज. सर मेरा एक सवाल है कि सर वो अभी किसने कहा है कि पॉलिटिकल फिगर्स होता है ना सर, उनका कोई स्टेटमेंट भी नहीं लिखना चाहिए करके बता रहा था सर. उसका बारे में क्या कहना है सर आपका? नहीं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू. प्लीज एलैबोरेट अबाउट इट. मतलब सर वो पॉलिटिकल फिगर्स होता है ना, पर्सनालिटी, पॉलिटिकल पर्सनालिटी. फॉर एग्जांपल हाँ. इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राइट. उनका कोई भी स्टेटमेंट सेट बाय सोशोलॉजिकली कोई भी स्टेटमेंट डाला, ऐसा पर्सन बोला है करके डाला तो ठीक रहेगा क्या सर? आपको रेफरेन करना है कोई, आप किसी की आइडियोलॉजी, जो पॉलिटिशियंस हैं उनका नाम लेके डायरेक्टली चीज़ें ना बोलो. बिकॉज द इवेल्युएटर हु इज चेकिंग आवर कॉपीज, वी डोंट नो व्हाट इज हिज और हर आइडियोलॉजी.
हाँ he हाँ may हाँ or she may agree or not with our words. So we should refrain from it. We should always back our arguments from a perspective of a scholar who is specialized in that field. Okay. ऐसे में भी ऐसा नहीं लिख सकते सर। In essays, we can write neutral statements, not extreme statements. We cannot write that Indira Gandhi was involved in the some bad things. हाँ हाँ हाँ, वो We can डायरेक्टली नहीं लिखना चाहिए। emergency was bad, not the person was bad. हाँ सर। Okay. वो और इंटरनेशनल का कौन सा भी फिगर पर्सनल लिख सकते हैं क्या सर? Yes, we can write. Refrain from writing Indian personalities, outrightly rejecting or outrightly accepting their views. और एक सर वो अभी पेपर वन में सर वो कंक्लूजन लिखते वक्त अभी कंटेम्प्रेरी थिंकर्स होते हैं ना सर, उनका व्यूज उनका फ्यूचरिस्टिक व्यूज होता है ना, वो लिखे तो कंक्लूजन अच्छा रहेगा ना सर? Yes, yes, yes. Write contemporary examples along with the scholar's name. John Drays, Christopher Jefferson Law. You can use them. हाँ वही दो दो तीन चार है ना सर, वो उन्होंने उनका भी पढ़ चुका ना। अभी क्या है सर, वो टेक्स्ट बुक में फॉर एग्जांपल नितिन सिंह ने में सभी फेमस फेमस थिंकर्स है ना, कार्ल मार्क्स का, रॉबर्ट मर्टन का, मैक्स वेबर का है ना। तो Right. उसलिए मेरे को लग रहा था कंटेम्प्रेरी थिंकर्स लिखे तो मार्क्स आता है कि नहीं, ऐसा फील The हो रहा core था सर। should remain the same. You can add contemporary scholars as an addition. Okay. थैंक यू सर, थैंक Okay. Yes, Navneet, please carry on. सर जैसे कि ये आर्टिकल में बता रहा था कि हमेशा ना मतलब हम लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्ट को ना एज एक जोन देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मतलब पूरा है, लेकिन उसमें बता रहा है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत ज्यादा है। मतलब हर एक मतलब हर एक एरिया में एरिया वाइज वहाँ लैंग्वेज बदल जा रहा है, वो हो रहा है। तो उनको ना मतलब डाइवर्सिटी इन डाइवर्सिटी के फ्रेम में देखना चाहिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के फ्रेम में नहीं देखना चाहिए। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट एज मतलब जोन नहीं देखना चाहिए, ये वाले आर्टिकल में ये मतलब बताया गया। तो आप सॉलिडारिटी के बारे में इसको लिख सकते हैं, एथनिसिटी के बारे में लिख सकते हैं, एथनिसिटी एज एन एंगल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो वहाँ आप इन एग्जाम्पल्स का यूज़ कर सकते हैं कि एथनिक क्लैशेस जो हो रही हैं वो कल्चरल इश्यूज की वजह से हो रही हैं, तो वहाँ पे आप उनको कोट कर सकते हैं। ट्राइबल इश्यूज में कोट कर सकते हैं कि ट्राइबल डेवलपमेंट में क्या इश्यूज हैं, उनके जो ट्राइबल डेफिनेशन है वही आज तक एक बाउंड्री में हम उसको नहीं ला पाए हैं, उसकी डेफिनेशन ही नहीं है स्ट्रॉन्ग एक। ठीक है। देन सार्थक ने भी एक आर्टिकल शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हम इसे चाइल्ड लेबर के सॉल्यूशंस को और जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स की जिसके बात कर रहे हैं वहाँ भी उस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये भी अच्छा है। सार्थक आप कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, किस तरीके से यूज करेंगे? हेलो, हाँ सर, मुझे लगता है कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आजकल ये कंटेम्प्रेरी चल रहा है कुकी प्लस मीठी ट्राइब्स, तो हम इसको उठा के डाल सकते हैं एग्जाम्पल में। एंड रीजंस पूछता है तो उसमें डाल सकते हैं या फिर किसी और फॉर्म में डाल सकते हैं, मुझे लगता है। हाँ, तो अब आपका एक होमवर्क और बनता है। यहाँ से आपको क्या करना है, आपने ये चीज़ तो पढ़ ली है किससे रिलेटेड है, अब इन पे एक एक स्कॉलर, कंटेम्प्रेरी स्कॉलर के व्यूज़ आपको इसके साथ लिख के भेजने एज अ रिप्लाई टू दिस पोस्ट। कि हम बात करें फैमिली की, जैसे हमने बात करी रूपाली ने जो भेजा, तो आप रूपाली उस पर एक कंटेम्प्रेरी स्कॉलर ढूंढ के लाइए जिन्होंने कुछ फैमिली के बारे में कहा हो इस तरीके से जो अभी Yes, के sir. कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में रेलेवेंट हो। सार्थक आपको भी इस तरीके से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स पे जिसने कहा हो कुछ, ठीक है, वो स्कॉलर सर वो सोशियोलॉजिस्ट ही होना चाहिए या फिर किसी भी स्कॉलर का भेज सकते हैं? प्रेफरेंस आप सोशियोलॉजिस्ट को दो, जनरल स्कॉलर भी हो सकता है। तो हम जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम पता कैसे लगेगा ये रिनाउंड स्कॉलर है नहीं है, क्या पता? वो मतलब आप एग्जामिनर उसको जानता ही ना। एथनिसिटी के बारे में किसने क्या कहा है, तब आप एथनिसिटी के बारे में पढ़ोगे तो वहां से आपको नाम मिल जाएगा। ओके सर, ठीक है। सर और सॉरी किस फॉर डिस्टर्बिंग सर। हाँ विके बताओ। सर वो अभी हमने वो पेपर वन का भी ये चाहिए, नहीं तो पेपर टू का भी सर वो नोट्स बनाते हैं ना सर, वो 250 वर्ड्स में कितना लिखना चाहिए कितना नहीं लिखना चाहिए वो पता नहीं चल रहा सर, एक्सीड हो पहले रहा है जो सर मेरे को। आ रहे हो वो तो आपके कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए। उसके बाद जब आप पीवाईक्यू के स्ट्रक्चर्स बना रहे हो
वो आपके इस तरीके से होना चाहिए कि एक A4 साइज शीट में आपका स्ट्रक्चर तैयार हो, ठीक है। अभी सर फॉर एग्जांपल सर इमरजेंसी ऑफ सोशियोलॉजी करके पहला चैप्टर है ना सर, वो उसका हाँ उसका क्वेश्चन आया तो 250 वर्ड्स में, वो अभी नोट्स निकाल रहे हैं तो सभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन सभी रेवोल्यूशन के तो 2 to 3 पेज हो जाएगा ना सर हाँ, तो उसमें। राइट उस क्वेश्चन का 2-3 कैसे लाइन्स कैसे- you can either take paragraph wise or point wise. Keep a subheading that पॉइंट industrial revolution, सर। how it led to the emergence of sociology. हाँ सर। Industrial revolution brought some new classes, that is middle class, and it was a question about it, that how middle class is characterized. To हाँ study सर। that characteristics, sociology emerged. Similar way, sir, for scientific revolution you write 3 lines. Same way for enlightenment, Renaissance, this way. 2 to 3 lines only sufficient. Yes, cover more perspectives and हाँ try to address the one perspective in 3 to 4 lines maximum in 20 markers. In 10 markers, you should limit it to 2 lines. ओके। This is an art. Once reading and analyzing the subject and then writing it is an art. You have to develop it, and anyone can develop it while writing regularly. वही हो रहा है सर मेरे को, मेरे साथ अभी लिखता हूँ ना, वो 4-5 पेज हो रहा है सर, वो 250 वर्ड क्रॉस हो रहा है ना, वही वही नहीं सीखना चाहिए सर आपको। No issues. आप करिए, कोई हेल्प चाहिए तो बताना। ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक है। किसी और को कोई डाउट कि हम कैसे करंट अफेयर्स को लिंक कर सकते हैं? अब आप ये प्रैक्टिस अगर रेगुलरली एक आर्टिकल के साथ भी रोज करते हैं तो मान लीजिए आपके पास 50 से 60 2 महीने में तैयार हो जाएंगे, और उन एग्जाम्पल्स को आप इंटरलिंक करके, इंटर ऑपरेट करके कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये आप अपनी हैबिट में डाल लीजिए कि आप एक आर्टिकल ज़रूर, कोई आपको न्यूज़पेपर में दिख जाए तो उसको आप नोट कर लें इस तरीके से, ठीक है। हेलो हाँ सर, मैं बताऊँ। सर, वो सिलेबस पे जैसे टॉपिक से रिलेट हो जाएगा, ये टॉपिक से ये चीज हो सकती है, बट एक जो प्रॉपर आंसर में करते हैं ना, वो चीज अभी नहीं बन पा रही है। एक जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आता है कि आंसर में एग्जैक्टली यहाँ पे ये एग्जाम पे डाल सकते हैं, वो चीज नहीं आ पा रही। टॉपिक सिलेबस के टॉपिक से रिलेट हो जा रहा है। आंसर लिखो आप धीरे धीरे और मेरे को भेज दो जो भी आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है। उस पर हम काम करेंगे फिर। आंसर लिखो तभी बात बने। कुछ ना कुछ डेली लिखो, कोशिश करो और उसको चेक करा लो। ठीक है ठीक है। सर पेपर 2 का, हाँ हाँ सर पेपर 2 के क्या मैं सभी टॉपर्स का वीडियो देखा है सर। टॉपर्स ने बताया कि पेपर 2 में जीएस वाइज नहीं लिखना चाहिए, बल्कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से करना चाहिए हाँ, बोलते थे सर। कैसे सोशल रिप्रेजेंट करना चाहिए वो? देखने पड़ेंगे। उसमें आप इंडिविजुअल से लेके सोसाइटी तक आपको सब एस्पेक्ट्स कवर करने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो वहाँ आपको सोशोलॉजिकल नज़रिए से देखना पड़ेगा चीज़ों। सर एक बार मनरेगा का क्वेश्चन आया था ना सर, हाँ वो भी, बिल्कुल। हाँ वो भी अभी हमें क्या काम, जीएस में क्या लिखते हैं मनरेगा का फीचर्स और डेफिनेशंस, हाँ, एक्ट का फीचर्स वैसा लिखते हैं हमें। अब इसको देखो आप, ये सोशल मोबिलिटी के एंगल से देखो आप कि हाँ हाँ मेगा वेजेस होने के कारण लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, उनकी हाँ। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, उनकी सोशल मोबिलिटी बढ़ रही है, उनको क्या माइग्रेशन नहीं होने का चांस मिल रहा है। पहले क्या था कि माइग्रेशन करना पड़ता था, करना भी पड़ता है, लेकिन हम उसके अगर एस्पेक्ट देखें तो रिड्यूस हुआ है। तो माइग्रेशन कम हो गया लेबर्स का, दे आर गेटिंग देयर वर्क। उससे क्या हो रहा है, फैमिली जो कल्चर है वो डेवलप हो रहा है। अदरवाइज क्या होता था, माइग्रेंट्स लेबर ट्रैवल टू डिफरेंट स्टेट्स, तो वहाँ पे एक जो फैमिली रहती थी वो एक ब्रोकन फैमिली स्ट्रक्चर हो गया था। नाउ हाँ हाँ द फैमिली टुगेदर एंड वर्किंग टुगेदर। सो द फैमिली जो जिनको बोलते हैं ना कंसैगुनल बॉन्ड जो है किनशिप सिस्टम में, that are हाँ हाँ। becoming strong. So this is the sociological perspective of even this question. आप समझ में आ रहा है ना कि किस एंगल से सोच सकते हैं हम मनरेगा के क्वेश्चन को? हेलो, हाँ, मैं कह रहा हूँ अब समझ में आ रहा है ना हाँ सर, आपको उस क्वेश्चन को हम सोशोलॉजिकल तरीके से कैसे सोच सकते हैं? सोशोलॉजिकल तरीके से समझ आया सर। मैं अभी मनरेगा के बारे में पूछा है ना, वो एक्ट का फीचर भी याद करना जरूरी है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें इसमें लिखना ही नहीं है वो, सोशोलॉजी में उसका कोई काम नहीं है। हमें इसको ठीक। स्टार्ट ही इस तरीके से करना है कि जो मनरेगा है, इट इज एन टूल टू हाँ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबलाइज द सोशल
स्ट्रक्चर ऑफ द विलेज। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। ओनली सोशोलॉजिकल एंगल लिखना चाहिए सर आपके बारे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है वही नहीं तो वही फिर उसके लिए। हेलो। हाँ, नहीं तो वो जीएस का आंसर बन जाएगा फिर। वो अभी वो मनरेगा के बारे में पूछा तो किसी भी बारे में पूछा तो जीएस के अलावा ऐसे सोशल मोबिलिटी लेके कौन सा टॉपिक लिंक होता है ना, उसमें लिंक Every करके। chapter that you have read about, every chapter that you have read about, try to हाँ bring that. This is the ठीक है importance of making structures beforehand, so that ओके you get the points. I was able to answer you at so instantly because I have already made these structures, right? If I ask you for the first time, you will also get stuck. It is very normal. But if you have gone through a question twice, thrice, like I have gone through this question for more than 10, 12 times, so I know the points. Okay, fine. Anybody else want to ask something, discuss something? सर मिनिमम कितने थिंकर्स को कोट करना जरूरी है एक आंसर? नवनीत थोड़ा लाउड बोलो। सर मिनिमम कितने थिंकर्स को कोट करना जरूरी है एक आंसर के लिए? नहीं, ऐसा मत सोचो कि कितने थिंकर्स को, आपके आर्गुमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। थिंकर्स को हमेशा आपको स्प्रिंकल करना है। आंसर थिंकर से नहीं बनता, आंसर विल बी फ्रॉम आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट स्ट्रांग होने चाहिए, बिना थिंकर के भी हो तो वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। थिंकर, आप अल्टीमेटली ये ध्यान रखो कि याद नहीं कर पाओगे इतने सारे, आपको थिंकर के आइडिया का पता होना चाहिए, वो आइडिया किसका है और कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कभी ये मत सोचो कि इतने थिंकर्स को कोट करना है, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा और लगेगा इवेल्युएटर को कि यू आर जस्ट मतलब करने के लिए कर रहे हो बस, क्योंकि आंसर तो लिख नहीं पाओगे। एक 2 पेज के आंसर में आप कितने थिंकर्स को कोट कर पाओगे? 2, 3, 4। पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, आर्गुमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेशन को एंड करते हैं फिर। ऐसे ही अलग अलग एक्सरसाइज करते रहेंगे और अपनी सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते रहेंगे। आई एम वेरी हैप्पी दैट फ्यू ऑफ यू आर वेरी रेगुलर। रूपाली बहुत रेगुलर है और बहुत अच्छा कर रही है, तो देख के खुशी होती है कि कोई तो इसको अच्छे से यूज कर रहा है। सार्थक भी नया है लेकिन काफी अच्छे से कर रहा है। मुस्कान, मैं आपको बोलूंगा कि आप लिखना स्टार्ट करें थोड़ा सा। डॉक्टर प्रशांत, यू आर ऑल्सो टेलिंग मी दैट यू विल शेयर सम आंसर्स, तो प्लीज शेयर करना आप। ओके, मुझे स्टार्ट करे मतलब 10 से 15 दिन ही हुए हैं बस, तो मैं क्या करूँ? हाँ नवनीत, आप एक बार अपना अच्छे से नोट्स बना लो, कुछ हेल्प चाहिए तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना। ओके ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।